हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। तो साइंस fundamentally is a systematic study of the structure and behavior of the natural and physical world through observations and experiments. Technology is an art, skill, or ability which is used to create and develop product and acquire knowledge. So scientists use their knowledge to develop technology and then use technology to develop science. So because of this reason, science and technology are an integrated terms in today's world. Now, contribution of science to technology. Science as a direct source of new technological idea. For example, innovation and development, medical instruments, nuclear technology, radar systems, etc. Science as a source of engineering. Most of the technical knowledge used in the designing and development of tools and techniques is actually an outcomes of engineering science. Science has also helped in the development of human skills. So this is one of the fundamental contribution of science. Contribution of technology to science. So technology as a source of scientific challenges, the development in the field of technology pay for research and development in the field of science, instrumentation and measurement, techniques development of advanced instruments facilitated scientists to measure the distance between sun and earth. So the intensity of sun's ray, the revolution of celestial bodies, internal problems of human beings, life of a breath, etc. In today's world, the role of science and technology is indispensable. So we need science and technology in every sphere of our life, like to treat diseases such as cancer or even to book a cab or train flight ticket. Okay. So in fact, without technology, we can't imagine our life. Now, next question, define science and compare pure science and applied science. So, fundamentally, science is a systematic study of the structure and behavior of the natural and physical world through observations and experiments. So, the basic difference between the applied and pure science is that the applied sciences focus on the scientific knowledge of nature. So it is more related to engineering and technology. And pure science are more related to theories and predictions to understand the world of nature, often performed in a laboratories, even through there is a difference between these two forms of science. So they are still used together because in order to perform one thing, so you need the knowledge on how to approach it. Next question. Now, what is the root of science and technology in India? So basically, science and technology in ancient and medieval India covered all the major branches of human knowledge and activities, so including mathematics, astronomy, physics, chemistry, medical science, surgery, fine arts, mechanical and production technology, civil engineering and architecture, shipbuildings and navigation, sports and games. In ancient India was a land of sages, sons and seers as well as land of scholars and scientists. So ancient India's contribution to science and technology includes mathematics, astronomy, physics, chemistry, medical science and surgery, fine arts, mechanical and production technology, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, सेफ बिल्डिंग्स एंड नेविगेशन। तो डिटेल्स में यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हाउ साइंस एंड फेथ इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया और डिस्कस अबाउट एनी 5 प्लान विद देयर प्रॉपर ड्यूरेशन इंटरवल्स। तो यहाँ पर हमने 5 इयर्स प्लान जो हमारी स्टार्टिंग में 1951 से स्टार्ट हुए थे और ये 2015 तक रहे हैं, उसके बाद नीति आयोग स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरी डिटेल्स है यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू लेकर टू 12th 5 ईयर प्लान। ओके, तो आप रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 टू 1956 तक था। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961,
third 5-year plan is 1961 to 1966, and this plan is also called the गदगिल योजना। ओके, ये जो आपका थर्ड 5-year प्लान है, ये गदगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें बहुत से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट आपका प्लान हॉलीडे, तो जो आपका 1966 टू 1969 है, ये आपका प्लान हॉलीडेज है। एंड फोर्थ 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो 1969 टू 1974, फिफ्थ 5-year प्लान 1974 टू 1979, एंड सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 टू 85, सेवेंथ इज 85 टू 90। एनुअल प्लान्स, तो आपके 8 5-year plans could not take place due to the volatile politics situation at the center. So 2 annual programs are formed in 1991 and 1991 to 1992, ये आपका annual plans है। And 8th 5-year plan 1992 to 1997, 9th 5-year plan 1997 to 2002, okay, and 10th 5-year plans 2002 to 2007, 11 5-year plan 2007 to 2012, and 12th 5-year plan 2012 to 2017, okay। तो ये आपके 5-year plan है। जनरली क्वेश्चन 5-year plan मीन्स एनी 5 और एनी 2 एनी 4 और पूरे जितने भी आपके 5-year plans है वो एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, बट यहाँ पर लॉट्स ऑफ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस अगर होते हैं तो बहुत से आपको पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गिव एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ इसरो एंड डीआरडीओ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह इसरो एंड जो डीआरडीओ की एक्टिविटीज है, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, एंड जो करंट इंफॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट्स पे आपको मिल सकती है। यहाँ पर कुछ हमने रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ इसरो जैसे रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स है, सपोर्ट एरियाज ऑफ रिसर्च है, बट अगर इनकी आप डेप्थ की बात करेंगे, डीप नॉलेज की बात करेंगे, तो इनकी वेबसाइट में जाकर जो करंट सिनारियोज अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, रनिंग में है, वो आपको उनकी वेबसाइट से ही मिलेगा। एंड ऐसे ही आपको डीआरडीओ का भी मिलेगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1958। तो एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है कि करंट में भी कौन कौन से प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ओके, तो ये डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स टाइप एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पूरा डेप्थ में हमने नहीं किया, थोड़ा सा स्मॉल मीन्स छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो हमने एक एक लाइन की जो डेफिनेशन है वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इतनी डीप में हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which gained popularities in 1970s. So this is a science which through different biological process exploit organized cells and cellular components to develop new technologies. तो अगर हम बेसिकली बात करें तो different categories in biotechnologies like red biotechnology, green biotechnology, white biotechnology, blue biotechnology. Okay. Next question, इसरो, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इट वाज फाउंडेड बाय द डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑन 15 अगस्त 1969। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें। एंड मिशन ऑफ इसरो, तो यहाँ पर आपके मिशन भी दिए हुए हैं और ये आपकी इसरो की वेबसाइट्स में भी मिल जाएगा। हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ इसरो यहाँ पर भी है और ये आपकी वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है जो भी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, ओके, तो यहाँ पर आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between the GEO, LEO and MEO, means geostationary earth orbit and medium earth orbit,
ये आपके डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये दिया हुआ है, लो अर्थ ऑर्बिट, इसके डिटेल्स वगैरह। तो नेक्स्ट आपका डिफाइंड रिसर्च। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, research is a careful, systematic, and objective investigation conducted to obtain valid facts, draw conclusions, and establish principles regarding an identifiable problem in some field of knowledge। यहाँ पर क्लार्क एंड क्लार्क के अकॉर्डिंग ये आपकी डेफिनेशन है रिसर्च की। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन्स डब्ल्यू बेस्ट के अकॉर्डिंग, research is a systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the development of generalization, principles, theories, and concepts, and resulting in prediction, foreseeing, and possible ultimate control of events। Okay, and different authors आपके मार्टिन शर्ट लेवर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। In the broadest sense of the word, the definition of research includes any gathering data, information, and fact for the advancement of knowledge। Okay, next definition आपका क्रेसवेल के अकॉर्डिंग, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issues। So it consists of 3 steps: pose a question, collect data to answer the question, and present an answer to the question। So ये different authors के according यहाँ पर different definition यहाँ पर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड रिसर्च। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड लिस्ट द नेम ऑफ 5 इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंस। तो ये लिस्ट भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, लिस्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस एंड कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट आपके साइंटिस्ट सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, सर मोक्ष नंदन विश्वेश्वरैया, जो आपके इंजीनियर्स थे, फर्स्ट इंजीनियर्स, एंड इनके डे पर ही हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, वेंकटरमन राधाकृष्णन, एंड नेक्स्ट आपके मिस्टर जगदीश चंद्र बोस, मिस्टर सत्येंद्र नाथ बोस, मिस्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा, मिस्टर उमी जे भाभा। तो दीज आर दी आवर साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिया हुआ है। एंड और भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, ये आपके मिस्टर मेघनंद साहा, मिस्टर श्रीनिवासन रामानुजन, मिस्टर विक्रम साराभाई, हरगोविंद खुराना, एंड मिस्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट infrastructural bodies in India who are responsible for research activities and technological development। तो बेसिकली ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, यहाँ पर हमने कुछ ही डिफाइन किया है, यहाँ पर राइट डाउन किया है, जैसे DRDO, ISRO, CSIR, और भी रिसर्च बॉडीज़ हैं जो रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो लैब एंड जो बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमने केवल 3 बॉडीज़ ही यहाँ पर मेंशन किया है, DRDO, ISRO एंड CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेस्टर और व्हाट इज अ पेस्टर। तो पेस्टर आपका डिपार्टमेंट जो आपका साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। ये आपका प्लान स्कीम है, प्रोग्राम एम्ड एट टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, एंड इसी को हम बोलते हैं पेस्टर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसके दिए हुए हैं, 3 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका हाईलाइट्स द टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इस पैराग्राफ में क्वेश्चंस में आपका जो डिटेल्स है वो दी गई है, इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजिकल हाईलाइट्स दी गई यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी। ये भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। हु वाज कनद एंड हाउ डिड हज get his name। So a 6th century scientist of Vaishakhi Skula। Even as a child, he was interested in very minute particles called kana, so he was named Kanad। Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंशन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धयान इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट मैथमेटिशियन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई एंड डेरिवेशन ऑफ द थ्योरम दैट इज नाउ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम बुद्धयान की बात करें तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एक तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया पाई का, और नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज उनका पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अभी लेकर आएंगे। आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।